Question number one. Test is on sequence and series. Total number of questions is 12. Find the sum of n terms of the series. Series is 0.5, 0.55, 0.555 and so on. The first step is take 5 common and then multiply the 9 by 9 and divide it by 9. This is very important step. पहले आप 5 कॉमन लेंगे, उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. मैंने दोनों स्टेप्स एक साथ किए, तो ये आपको n टर्म्स आ जाएंगे. 0.9 कैन बी रिटन एज 1 minus 0.1. 1 minus this becomes your GP. 1 is your constant term taken n times, and the first term is 1 by 10 and common ratio is 1 by 10. This is the formula for Sn, that is a into 1 minus r raised to power n divided by 1 minus r. So after simplifications, this is 9 by 10, 10 से 10 cancels, 9 common, 9n आ जाएगा. This is your final answer. Question number 2. Insert 5 number between 8 and 26 such that the resulting sequence are in AP. I have taken 5 numbers between 8 and 26 which are in AP. Then D will be, the formula is b minus a divided by n plus 1. N is the number of arithmetic means. Or you can use it, a7 से भी आप कर सकते थे कि t7 is 26, a plus 6d is 26, 6d is equal to 26 minus 8d will be 3. You can solve this method also. A will be second terms, 8 plus 3, 11, 11 plus 3, 14, 17, 20 and 25, 3. These are the numbers. Third question in an AP. If mth term is n and nth term is m, here you should write let a be the first term and d be the common difference. Let a and d be the first terms and common difference respectively. ये लिखना चाहिए. Now this I have written formula, this I have written the formulas. दोनों को subtract करेंगे तो d will be m minus n minus m, d will be minus 1. d को substitute करके a निकाल देंगे. AP आपने निकालना है, a plus p minus 1d. a और d की वैल्यू पुट करें. This is your final answer. Question number 4. How many terms of AP is 17, 15, 13 must be taken so that the sum is 72. Sn is 72, n by 2, 2a, a is 17, 34, d is minus 2. And this simplify करके ये टर्म आएगी, फैक्टर बना के ये आएंगे. n की दो वैल्यूज आएंगी, वन इज 6 and another is 12. आप कहेंगे the sum of 7th term and the 12th term is 0. t7 मैंने 5 निकाला, t12 minus 5. इन सब को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 आएंगी. आंसर विल बी 0. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ द डबल आंसर, कि जो सम ऑफ 6 टर्म का सम होगा वही सम ऑफ 12 टर्म का सम होगा. रीजन क्या है कि 7 से लेकर 12 तक का सम जो है वो 0 आ जाएगा. Question number 5. If m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, show that m plus nth term of an AP is 0. m times the mth term is equal to n times the nth term. ये लाइन यहाँ पे भी लिख लेनी चाहिए. Let a be the first term and d be the common difference. इसमें मैंने a कॉमन लिया था, m माइनस n, d कॉमन लिया था. ये इसके रीअरेंज कर लो टर्म.
एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर को इकट्ठा कर लेना, माइनस एम माइनस एन को इकट्ठा, तो एम माइनस एन कॉमन आ जाएगा। तो ये पी ऑफ एम प्लस एन का फार्मूला भी यही होता है। या यू मे राइट हियर व्हाट इज पी ऑफ एम प्लस एन, तो यू मे राइट ए प्लस एन प्लस एन माइनस वन ऑफ डी विच इज कम्स टू बी 0. दिस प्रूव दैट पी ऑफ m plus n will be equal to 0. So these are the 5 questions. Question number 6. The ratio of the arithmetic and geometric mean of two positive number a and b is m is to n. Show that the m plus nth term of an AP is prove that two positive numbers के रेशियो m is to n नंबर आपने प्रूव करना है। आप यहाँ पे पहले एक लाइन तो लिखनी चाहिए कि लेट द टू नंबर बी a and b. Arithmetic mean is a plus b by 2. Geometric mean is under root of ab m by n. ये स्टेप हम लिखते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो a प्लस बी ये स्टेप आ जाता है, इसको मैंने स्क्वायर बना दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ये आ जाएगा, अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। दोबारा फिर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओ, 2 ऑफ अंडर रूट ए अपॉन 2 ऑफ दिस, इसमें लगाएंगे तो ये टर्म्स आ जाएंगे। अगेन यहाँ पे आपने स्क्वेयरिंग किया, a by b, a square plus b square plus 2ab, a square plus b square minus 2ab. This is your final answer. Question number 7. If the pth, qth and rth term of a gp's are abc. अब पी क्यू आर ए बी सी दिया हुआ तो यहाँ पे भी हमने यही लेट करना है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड कैपिटल आर बी द कॉमन रेशियोज, let capital A and R be the first term and common ratios. तो ये फार्मूला लगा दिया, a r raised to power p minus 1 is a into r raised to power q minus 1 is b and this is c. ये मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले ली, a raised to power q minus r, b raised to power r minus p and this. a की वैल्यू पुट की q माइनस आर, बी की पुट करी एंड सी। जब a की पावर इकट्ठ करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, पहले से q माइनस आर, दूसरे से r माइनस पी, p माइनस q, ये तो a की पावर 0 आ जाएगी। जब r लेंगे तो दोनों पावर मल्टीप्लाइड होंगे, पहले मैंने इसको p से मल्टीप्लाई किया, इस वाली को q से किया, इस वाले को r से किया, फिर -1 से किया, अगली टर्म को भी -1 से किया, ये भी -1। तो अब जब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो r की पावर 0 ही आएगी, तो आंसर इज 1 विच इज योर राइट हैंड साइड। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपको प्रैक्टिस और कैलकुलेशंस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 7. Let the numbers be a, ar and ar square and their square is 21. इसमें जब मैंने डिवाइड किया फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड करके, ये फैक्टराइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, आर स्क्वायर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना। जिस बच्चे को ये फैक्टराइजेशंस आती हैं, याद रहेगी हैं, उसके लिए सम कोई प्रॉब्लम्स नहीं, क्योंकि यहां से मैं डिवाइड करूंगा तो ए स्क्वायर से स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r4 आर स्क्वायर है। अब ये बेसिकली ये स्टेप्स बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आर स्क्वायर। तो मैंने ये फैक्टराइजेशंस कर दी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक टर्म ये वाली स्क्वायर से कैंसिल होगी, 7/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म्स आ गई, 2 कॉमन लेके ये आ गया, इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये आ गए, r की वैल्यू 2 और 1/2 आ गई, r वैल्यू 2 लेंगे तो a 1 आ जाएगी फर्स्ट से,
1/2 लेंगे तो 4, तो नंबर 1 2 4 एंड 4 2 1 आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो फैक्टराइजेशन है। आपको फैक्टराइजेशन ही इस टाइप से ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, लेट द नंबर बी a by r, a and ar, बिकॉज प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इन जीपी इज 8, जब प्रोडक्ट दिया तो हम नंबर यही लेते हैं। प्रोडक्ट इज 8 मीन मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 क्यूब 2 आ जाएगा। अगली टर्म में दिया सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर टेकन इन पेयर। टेकन इन पेयर मीन टेकन 2 एट ए टाइम्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आर की वैल्यू 2 लेंगे तो ये आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आर की वैल्यू 4r। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये। तो मैंने यहां से r प्लस 1/r 5/2 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेना, यही इक्वेशंस बनेंगी सेम। तो यही r की वैल्यू 2 और 1/2, तो नंबर्स भी यही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, if f is a function satisfying means f of x plus y is equal to f of x into f of y। इस स्टेप को समझना है कि f of 1 3 है, जब मैं f of 2 को 1 plus 1 लिखूंगा तो ये f of 1 into f of 1 हो जाएगा इस मेथड से। तो ये 3 स्क्वायर आ जाएगा और ये 3 क्यूब आ जाएगा। अब स्टेटमेंट में fx 120 दिया हुआ, तो इट मीन f of 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3 120 है। मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, gp बन गया 120 84, n की वैल्यू 4। दिस इज योर फाइनल आंसर। सिर्फ एक ही स्टेप्स फॉलो करना है कि f of x प्लस y इज f of x into f of y। क्वेश्चन नंबर 11 में इन एन इंक्रीजिंग जीपी का मतलब होता है कि हम यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 लेंगे। अगर जो ग्रेटर देन लेस देन 1 आ गया तो हम नहीं लेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज 66। एक इक्वेशन मैंने ये बना दी। ऊपर एक लाइन लिख सकते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियोज। प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म इज 128, वो मैंने ये लिख दिया प्रोडक्ट करके। ये दोनों को आपस में सॉल्व किया। फर्स्ट वाली इक्वेशन से a से मल्टीप्लाई करके सब्स्टिट्यूट कर दो, a स्क्वायर माइनस 66a माइनस 128, क्योंकि ये a स्क्वायर इंटू आर की पावर n माइनस 1 से यहाँ वैल्यू पुट कर दें। फैक्टर बना दिए 64 इंटू a की वैल्यू 2 और 64। जब a की 64 से लेंगे तो ये डिक्रीजिंग जीपी आ जाएगी, इसलिए हम इसको पॉसिबल नहीं कह रहे। अगर हम a की वैल्यू 2 लेंगे तो r की पावर n माइनस 1 32, इट मीन r रेज टू पावर n माइनस 32 r लेंगे। SN 126, ये थर्ड कंडीशन हमें गिवन में है। वैल्यूज पुट कर दी गई हैं। a की वैल्यू 2 है तो ये 63 बना दिया मैंने। r रेज टू पावर n 32 r माइनस 1, दिस क्रॉस मल्टीप्लाई r की वैल्यू 2 फ्रॉम third, if I put the value of r is 2 and will be 6, तो a2 r2 and 6 ये इसमें आंसर आ जाएगा। और आपसे पूछा यही गया था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो फाइनल आंसर इज n is 6। a2 r2 आपने यहां पुट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12, if a and b are the roots of this equation, c and d are the roots of this equation। तो मैंने यहां से सम ऑफ रूट्स निकाल दिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। लेकिन एक टर्म दी है a b c d are in gp, a b c and d are in gp। तो इसका मतलब b by ar लिख सकते हैं, c को ar स्क्वायर लिख सकते हैं और d को ar क्यूब लिख सकते हैं। जब a b c d r इन gp होता है तो हम ऐसे लिखते हैं। ये स्टेप आपको याद रखना चाहिए। तो जब मैं b को ar लिखूंगा तो ये स्टेप्स आ जाएगा, ar स्क्वायर एंड ar क्यूब। मैंने सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट किया,
यहाँ से a कॉमन, यहाँ से a आर स्क्वायर कॉमन, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई। अब मैंने p बाई क्यू निकाल दिया, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, ए बी का मतलब हो गया इन दोनों को मल्टीप्लाई ए स्क्वायर आर, सी डी का मतलब हो गया ए स्क्वायर आर 5, तो 1 बाय आर 4 1 बाय 16 आ गया। अब मैंने आखिरी में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर दिया कि क्यू प्लस पी मीन्स 16 प्लस 1 17, क्यू माइनस पी मीन्स 16 minus 1, that is 15. So this is the answer that you have to prove. So this is all about your test sequence and series, chapter number 9. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसमें हमने सिग्मास के और वो प्रोडक्ट्स के क्वेश्चंस नहीं लिए, दैट इज नाउ आर इन अ डिलीटेड पोर्शंस। आई हैव टेकन ओनली CBSE पॉइंट ऑफ व्यू से।